ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 31 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ UN ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ठीक है जी। जो सिंपल क्वेश्चन है ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। RTE ਮੀਨਸ ਕਿ RT ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 2002 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੋਟ 'ਚ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ? ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 6 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ, ਜਿਹਦੇ ਟੋਟਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 10 ਅਸਥਾਈ, ਮਤਲਬ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਤੇ 10 ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। USA, UK, ਫਰਾਂਸ, ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬਟ ਜਰਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਹੈ USA, ਇੱਕ ਹੈਗਾ USSR, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ, USA, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ USSR। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ USA। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਵਾਲੇ 3 ਚਾਈਨਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ UK, ਟੋਟਲ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ 6 ਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਅਲਟੀਰੀਆ which became the 182nd member of the UN in 1993 belongs to which one of the following continent? ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 182ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ 1993 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਕਦੋਂ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਔਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ WHO? ਕਿਹੜੀ ਇਕਲੌਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ, ਭਾਰਤੀ ਵੂਮਨ, ਜਿਹੜੀ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ UN ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ WHO ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ। ਅਗਲਾ, ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਡਿਡ ਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਿਕੇਮ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ? ਇਹ PSPCL 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ 1977 ਵਿੱਚ, 1977। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 1977 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ, the Union Territory of Andaman and Nicobar Island comes under the jurisdiction of?
देखो अंडेमान निकोबार की आदि अदालत नहीं हैगी, तो वो जी यूनियन टैरेटरी अंडेमान निकोबार इसकी अदालत फिर किहदे नाल शेयर करते, मतलब इन्हां दी अदालत किहड़ी है, तो इन्हां दी अदालत है कलकत्ता हाई कोर्ट। मतलब इन्हां दे सारे केस कित्थे जांदे ने, कलकत्ता हाई कोर्ट, या ये कह लो वैस्ट बंगाल ते अंडेमान निकोबार की उच्च अदालत इकट्ठी है, शेयर की, जिवें पंजाब ते हरियाणा की है उवें अंडेमान ते वैस्ट बंगाल की कित्थे गई, कैलकटा च। अगला, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वैलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक इंप्लॉयमेंट। किहड़ा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर अपॉर्चुनिटी, मतलब जो आप अपलाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब वास्ते, ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि सारे अपलाई कर सकन, ये किहड़े अनुच्छेद से आता है, ठीक है, ये आता है अनुच्छेद नंबर 16, ठीक है जी, याद रखना है अनुच्छेद 16। अगला, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्योर्स अबॉलिशन ऑफ टाइटल। किहड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब संविधान के किहड़े अनुच्छेद से जिहड़े आपां टाइटल्स देने ना, महाराजा, जिवें महाराजा रणजीत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिहड़े आपां अगे बोलते हैं महाराजा सरदार, इन्हां दा खात्मा किया गया सी, ते इन्हां दा खात्मा किया गया सी आर्टिकल नंबर 18 के हेठ, आर्टिकल नंबर 18, ठीक है जी। अगला, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। ये 3 अक्षर ने जिहड़े अपने भारतीय संविधान च लिखे गए हैं, ये आप कित्थों लए सी, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता, ये आप फ्रेंच रेवोल्यूशन तो लए हुए हैं। किहड़े 3 अक्षर ने, लिबर्टी, इक्वलिटी मीनस समानता एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है जी, ये आप कित्थों लए ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो लए हुए हैं, ठीक है जी। अगले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सैकुलर स्टेट। इन्हां चों किहड़ा ये दर्शाता है कि भारत एक सैकुलर स्टेट है। सैकुलर मतलब जिथे सारे धर्म इकट्ठे वसते हैं, उन्होंने कहते हैं धर्म निरपेख, ठीक है। ये अपना प्रिएम्बल जिन्होंने आप प्रस्तावना कहने, प्रस्तावना च लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ सैकुलर कंट्री, भारत एक धर्म निरपेख देश है, ठीक है जी। जोड़ा इतने ऑप्शन दिता 5th शेड्यूल, अपने टोटल 12 शेड्यूल ने, 5th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज बारे दसदा है, इस करके मैं लिखा कई लोग कन्फ्यूज ना हो। 5th शेड्यूल की है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, DPSPs ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DPSPs ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 31 ਚ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, मैंने आप कन्फ्यूजन सी कि किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। देखो गवर्नरों भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के जजिज ने उन्होंने भी नियुक्ति कौन करता है, प्रेजिडेंट राष्ट्रपति। पर जो उप राष्ट्रपति है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, ये इलैक्टोरल कॉलेज होंदा है, राज्य सभा ते लोक सभा द्वारा बनाया जाता है, उस द्वारा इनकी चोन की जाती है, ठीक है जी। तो याद रखना उप राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। हाँ, कसम राष्ट्रपति के सामने खाता है, या कोई ऐसा आदमी जो राष्ट्रपति नियुक्त करे उनके सामने, तो अगर पूछे जाए कसम किन सामने खाता है तो उपराष्ट्रपति सामने, रिजाइन किन राष्ट्रपति सामने। अगर सवाल है आज उपराष्ट्रपति रिजाइन किनू देंदा, तो फिर भी आंसर क्या आएगा, राष्ट्रपति। तो जी इनकी रिजाइन है, रिजाइन तो इनकी ओथ, दोवें चीज़ां किन सामने, राष्ट्रपति सामने, पर नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। अगला, रिट ऑफ मैंडमस। देखो टोटल अपन 4-5 तरह की रिट्स होंगे ने, तो अपन पूछे मैंडमस रिट की होंगी है, ठीक है। इनके ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट सी, मैं सिर्फ वो ऑप्शन लिखा जो आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है जी। याद रखना इनका आंसर ए ऑप्शन, मैं तुम समझा देना। अ रिट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कमांडिंग सम ऑफिसर और पर्टिकुलर अथॉरिटी टू बी स्पैसिफिक टू डू स्पैसिफिक एक्ट। कि जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी बंदे नूं कोई स्पैशल कोई पर्टिकुलर काम करने वास्ते कहे, उस रिट नूं मैंडमस कहा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिट्स जरूर याद करनियां ने, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है जी। अगला, द मनी बिल पास्ड बाय द लोक सभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्य सभा इवन वैन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस। देखो अगर कोई बिल, पहली गल तो वित्त बिल पास कितों होंदा, लोक सभा तो। ऑर्डनरी बिल लोक सभा भी पास कर सकती है, राज्य सभा भी पास कर सकती है, जिन्होंने आप आम बिल कहने हैं। तो अगर लोक सभा जो कोई बिल पास करती राज्य सभा को जाता है, तो राज्य सभा नूं उनका जवाब 14 दिन के अंदर अंदर देना जरूरी होंदा है, अदरवाइज ये मान लिया जाता है कि राज्य सभा तो बिल ऑटोमैटिकली पास हो गया, चाहे एक्शन लैन चाहे ना लैन। तो आंसर क्या आएगा, 14 दिनों के विच, ठीक है। अगला, यूनियन पार्लीमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। जी इंडिया की यूनियन ऑफ पार्लीमेंट है, मतलब सरकार की गल करिए, जोड़ा आप कह सकते हैं
सदना की गल करिए या यूनीयन ऑफ पार्लीमेंट कही पंजाबी च, सॉरी मैंने याद नहीं आ रखी कहां इनू, ठीक है। यूनीयन पार्लीमेंट ऑफ इंडिया किंदे नाल बनती है? देखो ये 3 चीज़ों नाल बनती है। इनू अगर आप कहिए तो ये बन सकता है विधान पालिका। विधान पालिका किंदे नाल बनती है? विधान पालिका 3 चीज़ों नाल बनती है। एक बनती है राष्ट्रपति, सॉरी हाँ 3 चीज़ों नाल बनती है, एक राष्ट्रपति, एक राज्य सभा, एक लोक सभा। ये तीनों मिला के प्रेजिडेंट, राज्य सभा तो लोक सभा, ये तीनों के जोड़ में आप कहने यूनीयन पार्लीमेंट, ठीक है जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं आप। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लीमेंट इज़, देखो जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका चेयरमैन कौन होंगे? पार्लीमेंट की कमेटी होंगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका चेयरमैन कौन होंगे? तो उसका चेयरमैन होंगे जोड़ा अपना लोक सभा का स्पीकर है, वो उस कमेटी का चेयरमैन गिना जाता है, ठीक है। 2 काम करता है, एक तो स्पीकर ऑफ लोक सभा भी है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी। देखो ये सवाल बहुत घट लोग पढ़ते हैं नोट्स से, बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है जी। अगला सवाल, द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जिन्होंने आप जन गण मन कहने वाज अडॉप्टेड ऑन, देखो ये बंगाली च लिखा गया सी, ठीक है। तो इनू हिंदी च कदों अडॉप्ट किया गया? इनू अडॉप्ट किया आप 24 जनवरी 1950। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जन गण मन नू हिंदी च कदों अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950, ठीक है। तुसीं मैंने कमेंट बॉक्स दस्या जी पहली बारी जन गण मन कदों गाया गया सी, ठीक है जी। अगला, द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलैक्टेड बाय, हुण मैं तुहानूं थोड़ी देर पहलां दस्सिया कि इहदी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, बट ये चुनिया किवें जांदा है? देखो इन्हें दिता है 1 and 2, 1, देखो 1 and 2 मीनस लोक सभा एंड राज्य सभा, अपना आंसर पहला ही हो गया ए ऑप्शन, जो मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी। सॉरी बैकग्राउंड थोड़ा शोर आ रहा है, इस करके पोज कर गया मैं, दोबारा सुनो कि उप राष्ट्रपति की चोन कौन करता है? तो मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी उप राष्ट्रपति की चोन लोक सभा ते राज्य सभा करती है, इनू इलैक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ये राष्ट्रपति के भी इलैक्टोरल कॉलेज होंदा है, बट उस दे इलैक्टोरल कॉलेज से लोक सभा भी आती है, राज्य सभा भी आती है, विधान सभा भी आती है। बट जो उप राष्ट्रपति है उनके इलैक्टोरल कॉलेज से सिर्फ लोक सभा ते राज्य सभा ही आती है, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन पंजाब लैजिस्लेटिव असैंबली? देखो पहला तो पंजाब दे विच सिर्फ विधान सभा है, पंजाब दे विच विधान परिषद नहीं है, ठीक है। पूछ रहे हैं पंजाब की विधान सभा विच कितनियां सीट्स ने? ये बड़ी बारी पेपर से क्वेश्चन आ चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है। 117 कितनियां ने? 117। तो ये सी 20 क्वेश्चन जेडे प्रीवियस ईयर पेपर च आ चुके हैं सारे, ठीक है। तो मैं होप ये करदा कि तुसीं सारिਆਂ ਦੇ नोट्स बनाओगे, क्योंकि मैं होर क्वेश्चन भी लैके आऊँगा थोड़े दिनों तक। तुहाडे सारे पेपर ने जिन्ने भी गवर्नमेंट एग्जाम ने, चाहे PPSC का, चाहे PSPCL का, चाहे पंजाब कॉन्स्टेबल का, हैड कॉन्स्टेबल है, सारे ही जोड़े पंजाब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने वो रिपीट होंगे ने। इस करके इहदे नोट्स बनाओ, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सैक्शन च लिखो, असीं जरूर हल करांगे, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक